ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ BA, B.Ed, B.Tech ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ B.Ed ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 5 ਔਰ 6 ਤੇ ਜਾਓ, PR ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ SOP 'ਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਵਲ 7 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਵਲ 5 ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ और केड़े कॉलेजेस, कुछ एक बार लिस्ट थोड़ी जारी करोगे विद्यार्थी की? देखिए हम सितंबर मंथ में तकरीबन 9 सेमिनार्स लेके आ रहे हैं पूरे हरियाणा और पंजाब में, जिसमें एवरी सैटरडे हमारे हरियाणा में है और एवरी संडे हमने पंजाब के वखरा शहरों में रखे हैं जी। इनमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, SPP नॉन SPP दोनों। अगर हम बात करें कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, वैनकूवर आइसलैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैल्यू, क्वार्टलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आपका सेल्ट क्रीक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न ब्रिटिश कोलंबिया, NLC कॉलेज, सेंट लॉरेंस कॉलेज, आपका नियाग्रा, सेल्डन, जॉर्जियन, सेनेगा, कैम्ब्रियन कॉलेज, नॉर्थर्न कॉलेज, कॉलेज ऑफ द रॉकी, रेड रिवर, पार्कलैंड। इस तरह से मतलब मोस्टली SPP कितनी हो जाएंगी SPP ते जड़ी यूनिवर्सिटीज ने रला मिला के कितनी हो जाएंगी? तकरीबन हम 30-35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का सेमिनार कर रहे हैं। वेरी गुड। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 30-35 ਸ਼ਹਿਰ, 30-35 ਕਾਲਜ, यूनिवर्सिटीज और तीनों ही ऑप्शंस जिनमें मैं पहले बोला जी जी यूनिवर्सिटी और हम SPP मोस्टली ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटीज और अपना क्या नाम है SPP। इसके अलावा अगर कोई SPP में रिजेक्शन है तो उसकी हम डेफिनेटली दे कैन कम और उसमें असेसमेंट करके देखते हैं कि अगर कुछ पॉसिबिलिटीज है डेफिनेटली वो जर्नल में फाइल लगा सकते हैं। बहुत रिजेक्शन होती है प्रदीप जी। मैं एक सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। SPP ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ निजी तजर्बा किहो जिहा है कि विद्यार्थी को फाइल लानी चाहिए जर्नल दे विच? देखिए देखना पड़ेगा पहले तो रिजेक्शन में क्या रीजंस दिए हैं, उसके बाद अगर लगता है उसमें चांसेस है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग SOP के साथ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ। और इसके अलावा जो जर्नल में की चेकलिस्ट के हिसाब से फंड्स भी दिखाने होंगे, एजुकेशन लोन लेटर दिखाना होगा और पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन लाइक ITR, इनकम सर्टिफिकेट, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, J फॉर्म, फर्द, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें लगा के। एक चीज नहीं समझ लगी प्रदीप जी, जो एक विद्यार्थी SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਰਨਲ ਚ ਮੰਗ ले जाते हैं। की कारण की है? देखिए जो SPP स्टार्ट हुआ था, SPP बहुत फास्ट प्रोसेस है, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है। सिर्फ एंड सिर्फ SOP प्लस में इसके अलावा SOP भी नहीं लगती एक तरह से। इसके अलावा सिर्फ एंड सिर्फ आपके जो फाइल, जो आपका फॉर्म भरे जाते हैं उसी के आधार पर वीजा लगता है। हाँ अगर किसी बच्चे का रिजेक्शन आता है तो फिर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देके कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं एम्बेसी का ज्यादा रिजेक्शंस किस आधार पे? सितंबर इनटेक दी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं कर रहा, ओवरऑल मार्केट ਦਾ सिनेरियो की कह रहे हैं? देखिए अभी मैं इसी वीक में मोगा में सेमिनार में था, एक स्टूडेंट अपनी पूरी प्रोफाइल के साथ, स्टूडेंट और स्टूडेंट की फादर आया था, तो वो फाइल की फोटोकॉपी लेके आ गया।
तो मैंने अगर उसकी फाइल देखी तो कैन यू बिलीव सर, उसमें फाइल का सिस्टम ही बेकार था। लाइक देखिए कि जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में एक चीज लिखी होती है कि आपके पास कितने खर्चे होने और कितने फंड्स अवेलेबल हैं। उसके जो खर्चे होने थे $28,000 के और उसके पास फंड्स अवेलेबल $10,000 के। हाउ इज इट पॉसिबल कि उस बच्चे का वीजा आएगा? दूसरा, एम्बेसी ने पूछा था कि लास्ट 10 ईयर में आपने क्या क्या एक्टिविटी की है, तो वो लिख रहा है, मतलब कंसल्टेंट जो फाइल में मैंने देखा कि भाई अगले 2015 से लेकर 17 तक मैं ये कोर्स करूंगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। अरे उस फॉर्म में तो देखो, उसमें लिखा कि पीछे क्या किया है, फ्यूचर नहीं पूछ रहा, पीछे क्या किया है। तो कुछ तो ये रीजंस है कि हमारे जैसे महानुभाव वो फाइल को अगर अच्छे तरीके से नहीं देखते या अच्छी तरह से चेक नहीं करते या एक्सपर्टीज के साथ नहीं चलती तो रिजेक्शंस बच्चे का आ जाता है। दूसरा, रिलीवेंट कोर्स, कहीं ना कहीं कोर्स की भी ऐसी चीज होती है कि बच्चे को ऐसा कोर्स दे देते हैं कि जिसके कारण रिफ्यूजल आती है। रिलीवेंट कोर्स, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि $28,000 लगने हैं, $10,000 अवेलेबल दिखा रखे हैं। और तीसरा, कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, लाइक बच्चे का स्कोर कम है, 6 बैंड आ गया, उसको पीजी में आप डाल रहे हो, परसेंटेज उसकी लो है, तो कहीं ना कहीं ये 3-4 रीजन है जिसके कारण बच्चे की रिफ्यूजल्स आ जाते हैं। जी, हुण विद्यार्थी वाल आने आ, जिहड़े विद्यार्थी ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके विदेश जाने का सुपना लै रहे हैं, बड़ियां हर्डल्स आउंदियां ने, बड़ा डराया धमकाया जाता है, एजुकेशन लुकाउण की गल की जाती है, विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है। एक्चुअल वड्डी समस्या मार्केट की जिहड़ी यही है कि विद्यार्थी नूं विचारे नूं सच नहीं पता लगता कि कानून एक्चुअल की हैगा, कि कंसलटेंट्स किते झूठ तो नहीं बोल रहा, उहदा किते जालसाजी तो नहीं पैसे ठगण दी। बड़े सारे अहम सवाल खड़े होंदे ने ज़हन दे विच। सो तुहाडे अज सवालों के जवाब देने वास्ते असीं इस मंच ते हाज़र होए हां। पहला तो मैं उन्हां विद्यार्थियों की गल करां बीटेक जिन्हां ने तुहानूं भी स्पैशली मेरे ख्याल 3-4 एजुकेशन फेयर दे विच गल कीती, और मेरे स्पैशली पर्सनल फेसबुक के उपर, देश प्रदेश लाइव के फेसबुक के उपर बीटेक वाले बच्चे अक्सर बेचारे पुछते हैं जी मेरे इन्ने परसेंटेज घट गए, इन्नियां सप्ली सीगियां, मैं कैनेडा जाना सी, आस्ट्रेलिया जाना सी, बड़ा कुछ अहम सवाल होंदे ने जिहड़े तुहाडे नाल साझे करांगे। बीटेक जिहड़ा एक बहुत पेचीदा मामला इस वक्त बनया होया प्रवास के मामले खास तौर पर, इत्थे जॉब नहीं मिलती, परसेंटेज घट जाती है, सप्लीज आ जांदियां ने, उन्हां लई पहला कैनेडा वाल असीं गल करिए, किन्नी कु कंपार्टमेंट्स सप्लियां दे नाल जिहड़ी सक्सैस रेट है वो कैनेडा का एसपीपी दे विच पाया जा सकता है। देखिए, पर्टिकुलर हर एक एसपीपी के अंदर 43 कॉलेजेस हैं, हर पर्टिकुलर कॉलेज का एजुकेशन प्रोवाइडर्स का अपना एंट्री क्राइटेरिया है। कुछ तो 8 से ज्यादा री नहीं लेते, लाइक 8 से ज्यादा अगर उसकी कंपार्टमेंट्स हैं, उससे ज्यादा अगर एडमिशन की मैं गल कर रहा, एडमिशन ठीक है, असं मानते हैं कि वक्-वक् हर एक दा अपना क्राइटेरिया में तुसीं गल कीती। एम्बेसी किवें लैंदी है इस चीज में? एम्बेसी देखती है, और देखिए अगर आपने एक बच्चे की 2013 में या 14 में पास होना और वो 2015 या 16 में पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं एम्बेसी इस चीज को लिखती है। अब जो फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेम अगर वो अब मतलब फर्स्ट सेम जो उसने 2009 में या 10 में करना चाहिए था, अगर वो 2013 या 14 में कर रहा था, उस बच्चे का वीजा कहां से लगेगा? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमास कर रहे हैं, प्लीज अपना जो सेमेस्टर वाइज जो भी है उसी टाइम पे उसको कंप्लीट करें। अगर आपकी 2010 में कंप्लीट होना है फर्स्ट सेम तो कोशिश करो 10 में ही उसको कंप्लीट करो, ठीक है। री आ गई तो आपको एक उसी सेमेस्टर में नेक्स्ट मतलब उसी 3 महीने 4 महीने बाद जो चांस मिला उसको प्रूव कर लो, अपने को पास कर लो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलते जा रहे हैं फर्स्ट सेम की उसकी चलती जा रही है और वो फाइनल में पहुंच गए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, और एम्बेसी ये सोचती है कि ये इंडिया में तो पढ़ नहीं पा रहा, बाहर जाके कैसे पढ़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू हार्ड वर्क, अपना हार्ड वर्क करो और अपना टाइम टू टाइम अपनी रिकम्प्लीट करो ताकि आपका भविष्य बने। परसेंटेज कितना मैटर करती है? विद्यार्थी ने भी सवाल सानू पूछा है कि बहुत वेरीएशन आती है साड़ी, 45-50% भी आ गए, 55 तो 60 भी आ गए, 70 तो 80 आ गए। एक विद्यार्थी दी सप्लीज आ गई 6 निकल गई, परसेंटेज बहुत अच्छी है 70 तो 80%, उन्होंने तुसीं अच्छी प्रोफाइल मानते हो। एक विद्यार्थी दी सप्लीज घट सी बट परसेंटेज बहुत लो है। देखिए यहाँ पे ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक मैटर करता है। जिस बच्चे की पहले री आई थी, री आने के बाद उसने दोबारा पास आउट हो गया और अच्छी परसेंटेज के साथ पास आउट हो गया, तो आप बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई वो उस टाइम री क्यों आई थी और अब मैं अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर वो आईएलटीएस में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लाइक 6 बैंड की रिक्वायरमेंट और 6.5, 7 और 8 बैंड ले लेता है, तो ऐसे बच्चे का वीजा 100% आने के चांसेस होते हैं। और एक बच्चे की परसेंटेज कम है तो कहीं ना कहीं उसका तो डाउट है, क्योंकि एसपीपी के अंदर 3-4 चीजें मैटर करती है कि एक तो आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। यहां पे ओवरऑल 50% के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो अंडर एसपीपी है, कोई 55 भी मांगती है, कोई 60 भी मांगती है, कोई 65 भी मांगती है। हर एक कॉलेज का एजुकेशन प्रोवाइडर का अपना अपना एंट्री क्राइटेरिया है। सेकेंडली, मेन जो सब्जेक्ट्स है
वो हमेशा मैटर करते हैं। जी। एक बच्चे के पास सपोज करो कि एक बच्चा बीटेक है, बीटेक करने के बाद वो टूल एंड डिजाइन कोर्स करने जा रहा है और उसी कोर्स की उसकी परसेंटेज कम हो जो उसने पढ़ा हो। मैं भी यही सवाल पूछ रही ਸੀ अगला कि जिस आधार ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅੱਗੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ होना चाहिए, कितना कुछ उसमें अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए और उसको स्ट्रेंथ एरिया दिखाना चाहिए। देखिए जी मेरे पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स है, मेरा इसी सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं ये करना चाहता हूं और मेरा ये आप परसेंटेज देख सकते हो। अच्छा, ये भी हो सकता है प्रदीप जी कि एक कैंਡੀਡੇਟ ने मान लो एग्जांपल लेने भी 4 सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਨੇ, ਇੱਕ 55, ਇੱਕ 60, ਇੱਕ 65 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ 55 ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ 65% ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 55 ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ रेलेवेंसी ਦੇ आधार ਤੇ कोर्स ले। देखिए जो रिफ्यूजल लेटर आता है उसमें तो कहीं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं होता, वो तो सिर्फ एक जगह टिक करता है। केस नोट कटावे कदे ऐसी चीजें सामने आई हैं, डेफिनेटली वी कैन सी, ये देख सकते हैं, बट कोशिश यही करो, यहाँ पे यही मैटर करता है कि जो आपकी जो एक वीजा कंसल्टेंट है या एक काउंसलर है वो ये सारी चीजें देख के सारे की सारी सेमेस्टर वाइज देख के प्लस में पूरी की पूरी मतलब फर्स्ट सेम से लेके लास्ट तक सारी चीज देखे और तब पर्टिकुलर अगर कोर्स बच्चे को सजेस्ट करे जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है तो उसके वीजा के चांसेस रहेंगे। जी, एक बार फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਪੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਐਸਪੀਪੀ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਟ ਤੇ ਵੈਨਿਊ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ।